Now come to second life cycle. Already we have discussed regarding algae, we have discussed bryophytes, we have discussed pteridophyta which belongs to seed bearing plant, जिसको अपन ने क्रिप्टोगैम्स बोले थे. ठीक है, अब आज अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो सीड बेयरिंग प्लांट है एंड यू कॉल दैट डिवीजन एज जिम्नोस्पर्म्स. Now when you observe the term gymnosperm, here a special plants are kept. In gymnosperm the special plants are kept. Generally the plants which are kept, they are xerophytic in nature. इसमें जो प्लांट्स रखे गए हैं जनरली वो क्या है, xerophytic नेचर के प्लांट्स है. Means the plants more plants are available in desert area. That's why the plants are called xerophytes. This gymnosperm word, two Greek names are here. One is gymno and one is sperm. In which gymnos is called as naked and sperma you call it seed. Means in gymnosperm, whichever plants which are kept in gymnosperm, they have all seed bearing, but that seeds are naked. Means seeds has no cover. Generally seeds are covered inside fruit. Generally seeds क्या में कवर रहते हैं, fruit के अंदर में कवर रहते हैं. But here in gymnosperm there is no fruit. Only direct seeds are attached. Means when you observe gymnosperm, the ovary are absent. Ovary, style and stigma they are absent. Direct seeds are available due to presence of ovule. क्योंकि यहाँ पर direct seeds available है, क्योंकि यहाँ पर direct ovule arrange किया हुआ है. Now some characteristic features of gymnosperms are there. Generally in gymnosperm, the plants which we are interested to study is cycas. यहाँ पर जो प्लांट अपन को स्टडी करना है, नेम ऑफ दैट प्लांट इज साइकस एंड द साइकस प्लांट इज जनरली कॉल्ड एज सागो पाम. साइकस प्लांट इज जनरली कॉल्ड एज सागो पाम because when you observe the cycas plant, it yields a starch like material from a pith. स्टेम के अंदर में जो पीथ रीजन है, उस पीथ रीजन से ये स्टार्ची मटेरियल रिलीज करता है एंड दैट स्टार्ची मटेरियल इज कॉल्ड एज स्टार्च. That's why it is generally called as sago palm. Now when you observe total number of plants in gymnosperm, on an average there are 70 genera in gymnosperm. टोटल जिम्नोस्पर्म में प्लांट्स की अगर बात की जाए तो 70 जेनेरा है, इसमें 70 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स है एंड आउट ऑफ विच 1000 स्पीसीज आर अवेलेबल. और उसमें कम से कम 1000 स्पीसीज जो है दे आर अवेलेबल इन नेचर. दिस इज अगेन वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर. ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर व्हेन यू ऑब्जर्व जिम्नोस्पर्म, particularly when you study a life cycle belongs to a variety called cycas or pinus. First one is the plant body is sporophyte. पूरा प्लांट बॉडी की अगर बात की जाए तो प्लांट बॉडी यहाँ पर भी क्या है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है एंड दैट स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज ऑलवेज डिप्लॉयड. और उस स्पोरोफिटिक बॉडी हमेशा क्या रहेगा, डिप्लॉयड रहेगा. ठीक है, एंड दैट स्पोरोफिटिक बॉडी नाउ गेट डिस्टिंग्विश्ड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ. और स्पोरोफिटिक बॉडी जो है यहाँ पर डिस्टिंग्विश हो गई है रूट, स्टेम और लीव्स में. दिस इज अगेन वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर. व्हेन यू ऑब्जर्व द रूट, when you observe the roots as well as leaves of gymnosperm plants, when you observe the roots and leaves of gymnosperm plant, they are generally dimorphic in nature. They are generally dimorphic in nature. They are generally dimorphic in nature means roots which are available in gymnosperm, they are of two type, and leaves which are present in gymnosperm, they are again of two type. Name of one root is a normal tap root system. Name of one root is a normal tap root and name of one root is a corolloid root. Corolloid root. These two root systems are available. Similarly, when you observe the leaves, name of one leaf is a scale leaf in gymnosperm, which are protective in nature, and name of one leaf is a foliage leaf in gymnosperm. Foliage leaves, which are photosynthetic in nature, जो photosynthetic nature का है. इस प्रकार दो टाइप की रूट्स जिम्नोस्पर्म में मिलेगी, दो टाइप की लीव जो है आपको जिम्नोस्पर्म प्लांट में अवेलेबल मिलेगी. ठीक है, दैट्स व्हाई जिम्नोस्पर्म शोज डायमॉर्फिज्म एज इन रूट्स एज वेल एज इन लीव्स. रूट्स और लीव्स की बात की जाए तो जिम्नोस्पर्म जो है डायमॉर्फिक फिनोमिना शो करता है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जनरली जिम्नोस्पर्म आर
heterosporous, जिम्नोस्पर्म प्लांट जो है जनरली heterosporous नेचर का है. Heterosporous नेचर का मीन्स two type of spores are formed in gymnosperm. You got one spore as microspore and you got one spore as megaspore. दो टाइप के स्पोर जो है जिम्नोस्पर्म डेवलप करता है, एक को माइक्रोस्पोर बोला जाएगा और एक को मेगास्पोर बोला जाएगा. That's why gymnosperm are generally heterosporous in nature. Very few plants are there which are homosporous. Now, as far as sex organ is concerned, gymnosperms are always dioecious in nature. सेक्स ऑर्गन की बात की जाए तो जिम्नोस्पर्म हमेशा डायोशियस प्लांट के रूप में जाना जाता है, जबकि इसके पहले टेरिडोफाइट्स अपन ने पढ़े थे वो मोनोशियस नेचर का था. ठीक है, नेम ऑफ एन एग्जांपल इज कॉल्ड नेप्रोलिपिस. इस पे एक एग्जांपल अपन ने डिस्कस किए थे, नेप्रोलिपिस. जबकि जिम्नोस्पर्म जो है वो डायोशियस है. डायोशियस मींस टू टाइप ऑफ प्लांट्स आर देयर. यू कॉल्ड वन प्लांट एज मेल प्लांट, यू कॉल्ड वन प्लांट एज मेल प्लांट एंड यू कॉल्ड वन प्लांट एज फीमेल प्लांट. दो प्लांट यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में आपको पाए जाएंगे. एक प्लांट को मेल प्लांट बोला जाएगा और एक प्लांट को फीमेल प्लांट बोला जाएगा. ठीक है, दिस इज अगेन वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म. ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. सिमिलरली व्हेन यू ऑब्जर्व द फोलिएज लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में साइटस में जनरली आप फोलिएज लीफ ऑब्जर्व करोगे तो फोलिएज लीफ में लैटरल वेन्स जो है दे आर एब्सेंट. इन फोलिएज लीफ लैटरल वेन्स दे आर एब्सेंट. जनरली लीफ के अंदर में, सपोज दिस इज लीफ, a midrib is present and from this midrib lateral vein will form. These are lateral vein. तो इस प्रकार की lateral vein जो है जिम्नोस्पर्म प्लांट में क्या है, absent है, missing है. ये lateral vein नहीं रहने के कारण here a transfusion tissue is present. The characteristic feature of gymnosperm is in absence of lateral vein transfusion tissue is present which forms a lamina जो हल्के से lateral vein का काम करेगा. So that transfusion tissue is present in gymnosperm. Transfusion tissue is present. This is again one of the characteristic feature of gymnosperm. And large number of characteristic feature so that plant follows a xerophytic nature. बहुत सारे characteristic feature है जिम्नोस्पर्म में जिसके थ्रू प्लांट क्या फॉलो करता है, xerophytic habit को फॉलो करता है. और xerophytic habit को फॉलो करने के लिए there is less transpiration in gymnosperm. The transpiration is very less because leaves are very hard and shiny. क्योंकि लीव्स में काफी हार्डनेस है, काफी शाइनिंग है, क्यूटिकल काफी हार्ड है, स्टोमेटा जो है वो काफी सनकन है. ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहने के कारण जिम्नोस्पर्म जो है इसमें ट्रांसपिरेशन बहुत लेस होता है. एंड ड्यू टू लेस ट्रांसपिरेशन द प्लांट्स आर बेनिफिशियल एंड एज फार एज देयर हाइट एंड हैबिटेट इज कंसर्न्ड दे ग्रो एनीवेयर. जनरली दे आर अवेलेबल ओनली इन डेजर्ट एरिया. जनरली डेजर्ट एरिया में अवेलेबल है. अगर आप ज्यादा एक्सेस पानी में भी अगर जिम्नोस्पर्म प्लांट को रखते हो तो उसकी ग्रोथ होती है, बट द ग्रोथ बिकम स्लो. दैट्स व्हाई जनरली जिम्नोस्पर्म्स आर स्लो ग्रोइंग प्लांट्स. जनरली जिम्नोस्पर्म को क्या बोला गया है, दे आर जनरली स्लो ग्रोइंग प्लांट्स. नाउ वन मोर कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज व्हेन यू ऑब्जर्व द पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म में जब आप पॉलिनेशन की बात करोगे तो हियर पॉलिनेशन इज जनरली डायरेक्ट. जिम्नोस्पर्म का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जिम्नोस्पर्म में अगर पॉलिनेशन की बात करोगे तो पॉलिनेशन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, डायरेक्ट होता है. So what do you mean by direct pollination and indirect pollination? You know definition of pollination in 10th standard. Pollination is a process in which there is transfer of pollen grain from male sex organ anther to the female sex organ called receptive part, and you call that receptive part as stigma. Male sex organ का pollen grain फीमेल सेक्स ऑर्गन के स्टिग्मा के ऊपर सेटल होता है तो उस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं. उस प्रोसेस के पॉलिनेशन को क्या बोला जाएगा, इनडायरेक्ट पॉलिनेशन. जबकि यहाँ पर जो पॉलिनेशन होता है जिम्नोस्पर्म में वो डायरेक्ट पॉलिनेशन होता है. डायरेक्ट पॉलिनेशन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा नहीं है. फीमेल सेक्स ऑर्गन में ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा नहीं है, डायरेक्ट ओव्यूल अवेलेबल है. इससे पोलन ग्रेन जो मेल सेक्स ऑर्गन से रिलीज होगा इन फॉर्म ऑफ माइक्रोस्पोर वो डायरेक्ट ओव्यूल के ऊपर सेटल होता है, डायरेक्ट मेगास्पोरेंजियम के ऊपर सेटल होता है. That's why the pollination is generally called as a direct type of pollination. And generally in pollination, always one agency is needed. और pollination हमेशा एक agency नीड होती है, and you call that agency as wind. और pollination हमेशा एक agency से होगी, and you call that agency as wind. That's why pollination is always of anemophilous type. इसे pollination कैसा होगा यहाँ पर, हमेशा anemophilous type का होगा. Pollination is always of anemophilous type because always the pollen grain are transferred with the help of wind from
मेल सेक्स ऑर्गन टू फीमेल सेक्स ऑर्गन, बिकॉज द प्लांट्स आर डायोशियस इन नेचर, क्योंकि प्लांट यहाँ पर क्या है, डायोशियस नेचर के हैं. तो these are the major characteristic feature in gymnosperm. जिम्नोस्पर्म के मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. When you observe external morphology of gymnosperm, you should know the nature of plant body. You should know the appearance of plant body. First of all, we should discuss regarding a plant called cycas. External appearance of plant body. Suppose this is soil surface on which the plant starts growing. Below it, a root system is there. That root system is a normal taproot system. And in a normal taproot system, a primary root, secondary root, and tertiary root starts developing. So that it's a normal taproot system, and the main role of this taproot system is to absorb water and mineral from soil. Label it. This is root called taproot. Now, above the taproot system, this is underground part of plant body, and you want to study now the aerial part of plant body, which comes in direct contact with sunlight. अब आपको जो स्टडी करना है वो एरियल पार्ट स्टडी करना है, above the ground स्टडी करना है. When you observe the aerial part, there is development of stem. The stem is woody, erect, and unbranched in cycas. But when you observe the pinus plant, the stem is branched. This is again one of the diagnostic character. So here you will observe this is stem which is unbranched in cycas. Or generally large number of plants are there in gymnosperm in which the stem is unbranched. Okay? There is no lateral branches. And on stem surface there are hexagonal disc-like structures. और stem की surface के ऊपर आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, कुछ hexagonal disc-like structures है. These hexagonal disc-like structures are called as persistent leaf bases. These hexagonal disc-like structures are called as persistent leaf bases. इसका मतलब हमेशा लाइफ लॉन्ग प्लांट की स्टेम की सरफेस के ऊपर में आपको लीफ के बेसेस जो है वो अटैच किए हुए मिलेंगे. और इसी अटैचमेंट के थ्रू एज पर नॉलेज ऑफ साइंटिस्ट यू शुड नो द एज ऑफ प्लांट बॉडी. इसी परसिस्टेंट लीफ बेसेस को काउंट करके साइंटिस्ट इस प्लांट की एज भी बताता है. दैट्स व्हाई ऑलवेज द प्लांट इज एवरग्रीन. जिससे हमेशा प्लांट जो है क्या रहेगा, एवरग्रीन रहेगा. एंड दिस इज टॉप ऑफ स्टेम, एंड एट द टॉप ऑफ स्टेम द लीव्स आर अरेंज्ड. This is topmost part of stem, and at the topmost part of stem, leaves are arranged. Here the leaves are green in color. They are larger in size, and they are a type of compound leaves. But some plants are there in gymnosperm, particularly pinus, in which leaves are simple. और यहाँ आप साइकस में देख रहे हो, प्लांट में जो leaves है वो compound leaves है, pinnately compound leaves है. These are all green colored leaves, and these green colored leaves helps to prepare food by a process called photosynthesis. That's why the leaves are called as foliage leaves. So here you have to label it a foliage leaf, which helps to prepare food by a process called photosynthesis. अपन डिस्कस किए थे रूट जो है यहाँ पर डायमॉर्फिक है और लीव जो है यहाँ पर डायमॉर्फिक है. रूट लीव जो है दे आर प्रेजेंट एट टॉप मोस्ट पोजीशन. लीव की पोजीशन कहाँ है, स्टेम के एकदम टॉप में है. That's why this leaf forms a crown at the top of stem. जैसे लीव जो है क्या फॉर्म कर रहा है, एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है at the top of stem. Alternate to these foliage leaves which are green in color, dry leaves are also present at the top, which are reddish brownish in color. These are dry in nature and arranged alternately again at the top of stem called crown. These leaves which are dry in nature, reddish brownish in color, and again present at the topmost position is now called as scale leaf. The role of scale leaf is protective. scale leaf जो है प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में प्लांट को प्रोटेक्ट करता है. इवन रेमेटा अवेलेबल, जैसे टेरिडोफाइट्स में पढ़े थे अपने, रेमेटा अवेलेबल था, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहा था. यहाँ पर भी अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में जिम्नोस्पर्म में भी रेमेटा पाया गया है. ठीक है, दिस इज अगेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर. नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व द रूट्स एज वेल एज लीव्स आपने देखिए यहाँ पर डायमॉर्फिक हो गई है, दो टाइप की लीव्स डेवलप हो गई है, एंड बोथ द लीव्स दे आर प्रेजेंट एट द टॉप, और दोनों लीव्स कहां मौजूद है, टॉप पर मौजूद है. नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व द रूट्स, वन रूट स्टार्ट ग्रोइंग अबव
and on the soil surface you will observe that a dichotomously branched roots are available. और soil surface के ऊपर में आपको root जो है वो dichotomously branched दिखेगी. This dichotomously branched roots appears like a coral which are generally available in seashore. जो जनरली कहाँ अवेलेबल होगा? seashore में अवेलेबल रहता है. By observing this structure appears like a coral, scientists call this root as coralloid root. Scientists ने इस root को क्या नाम दिया है? Coralloid roots. Now why the roots grow above the ground and why the structure appears like a coral? It's again a big question. The roots are coralloid because in this root micropores are present. Roots सबके सब dichotomously branched हैं. इस प्रकार रूट जो है दो पार्ट में डिवाइड की हुई है और हर रूट में पोर्स है. These pores present on the surface of root are called lenticels. ये रूट के अंदर में जो पोर्स है उस पोर्स को क्या बोला गया है? lenticels. In this lenticel, a special cyanobacteria called Anabaena psychedi enters inside it. यहाँ पर एक स्पेशल बैक्टीरिया जो है एंटर करता है cyanobacteria called as Anabaena psychedi, which helps for nitrogen fixation. जो काय में हेल्प करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा. And that nitrogen gets stored. नेचर का जो क्लाइमेटिक कंडीशन का नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को एक साइनोबैक्टीरिया क्या कर रहा है? फिक्स कर रहा है. नेम ऑफ दैट साइनोबैक्टीरिया इज Anabaena psychedi. वो फिक्स करके प्लांट अब उस नाइट्रोजन को क्या करेगा? कंज्यूम करेगा. प्लांट अब उस नाइट्रोजन को क्या करेगा? यूज करेगा. That's why here also the roots are of two types. Name of one root is a normal tap root and name of one root is a coralloid root. इस प्रकार यहाँ पर भी डायमॉर्फिज्म हुआ है. दो टाइप की रूट्स पाई गई है. So this is the appearance of plant body. Now when you observe this appearance of plant body, at the top you will observe the plant is dioecious. अपन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़े यहाँ पर कि प्लांट जो है कैसा है? डायोशियस नेचर का है. डायोशियस नेचर का मीन्स टू टाइप ऑफ प्लांट्स आर प्रेजेंट. You call one plant as male plant. Suppose I have written it as a male plant of cycas. ये समझो मेल प्लांट है cycas का. ठीक है? When you observe the male plant of cycas, at the topmost position, a cone-like structure will develop. cycas का प्लांट अगर मेल प्लांट अगर आपको देखना है तो स्टेम के टॉप पर लीव्स के बीच में मिडल में, ठीक है, at the top of stem, in between leaves, a cone-like structure starts developing. And this cone-like structure starts developing is called as strobulus. ये cone-like structure जो डेवलप हुआ है इसको क्या बोला गया है? Male strobulus. Male strobuli, which is arranged at the top and is formed by large number of irregular shape, triangular shaped bodies, which are formed by large number of irregular shaped, triangular shaped bodies, and these large number of bodies are called as microsporophyll. This microsporophyll is a reproductive part of plant body. This is a reproductive part of plant body, and we call that reproductive part as male reproductive part, and we call that male reproductive part as microsporophyll. Phyll means leaf. Phyll means leaf. A special leaf, or you call it a special reproductive leaf, which starts developing microspore. We start developing microspores, and these microspores start developing or start releasing outside the male cone, outside the male strobulus during 3 nuclei structure. और जितने भी माइक्रोस्पोर्स यहाँ ये रिलीज होता है, ये लिबरेट करता है, सबके सब माइक्रोस्पोर जो है वो 3 nuclei स्ट्रक्चर में रिलीज होते हैं. ठीक है? That's why these microspores are also called as pollen rain. इसलिए माइक्रोस्पोर को और क्या बोला गया है? pollen rain. So from male plant, large number of pollen grains are formed. And every pollen grains which are released, they are non-motile. जितने भी pollen grain यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं वो सब non-motile है. They prepare their male gametes, वो male gametes prepare करेंगे. और male gametes जो यहाँ पर फॉर्म होते हैं, they are largest in plant kingdom. पूरे plant kingdom में यहाँ का जो male gamete है वो largest in size है, largest in shape है. This is again one of the characteristic feature of gymnosperm, जो यहाँ पर gymnosperm का एक major characteristic feature कहलाता है. ठीक है? हर pollen grain जो है वो माइक्रोस्पोर कहलाता है और वो 3 सेल स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है और वो रिलीज कर दिया है मेल सेक्स ऑर्गन ने, मेल प्लांट ने वो रिलीज कर दिया है. नाउ नेचुरली दैट माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन गो टुवर्ड्स फीमेल प्लांट. वो कहां जाएगा? फीमेल प्लांट की तरफ जाएगा. नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल प्लांट, जस्ट सी हियर अगेन, हियर द external phenomena they are saying
प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो आपको सिमिलर मिलेगा फीमेल प्लांट में भी। यहाँ पर भी आप देखिए आपको स्टेम मिल रही है अनब्रांच्ड, ठीक है। उस स्टेम के बिलो आपको नेचुरली रूट्स अवेलेबल मिलेगी। द रूट्स व्हिच आर अवेलेबल हियर दे आर अगेन ए टाइप ऑफ टैप रूट सिस्टम, जिसमें प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट है, टर्शियरी रूट्स है। हियर वी कॉल इट एज ए नॉर्मल टैप रूट सिस्टम। Then some roots grow above the ground. You call that root as dichotomously branched roots, and these dichotomously branched roots are called as coronoid root, which are helpful for nitrogen fixation. जो symbiotic association बनाया है, और symbiotic association में cyanobacteria is also benefited and this plant body is also benefited. Both the partners they are mutually benefited. That's why association is formed, and you call that association as symbiotic association with the help of cyanobacteria, because it fixes atmospheric nitrogen and that nitrogen is used by plant itself for its own growth and development, जिससे प्लांट की खुद की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। यहाँ पर भी वही सेम प्लांट मिलेगा, सेम कहानी यहाँ पर भी मिल रही है। स्टेम के टॉप पर यू नो वेरी वेल, एट द टॉप ऑफ स्टेम लीव्स विल अरेंज। हियर एट द टॉप ऑफ स्टेम लीव्स स्टार्ट डेवलपिंग। दीज आर द लीव्स व्हिच आर ग्रीन इन कलर and helps to prepare food by a process called photosynthesis. That's why these green leaves are now again called as foliage leaves. इसलिए जो green leaf डेवलप हो रही है, जो फोटोसिंथेटिक नेचर की है, इस लीफ को फिर से क्या नाम दिया जाएगा? foliage leaf. ठीक है, सेम कैरेक्टर। Now alternate to this foliage leaf, reddish brownish colored leaves, dry leaves are formed again at the topmost position. That leaves are called as scale leaf. उस लीफ को फिर से क्या बोला जाएगा? scale leaf. इसका मतलब रूट का स्ट्रक्चर, स्टेम का स्ट्रक्चर, ये सब सेम है। लीफ का स्ट्रक्चर वो भी सेम है, फर्क काय में है सेक्स ऑर्गन की पोजीशन पे। हियर एट द टॉपमोस्ट पोजीशन ए मेल कोन विल प्रेजेंट सो दैट द ग्रोथ ऑफ प्लांट गेट्स स्टंटेड। मेल प्लांट की ग्रोथ जो है यहाँ पर क्या हो जाती है? स्टंट हो जाती है, क्योंकि अपाइकल बड जो है स्टेम का, वही मेल स्ट्रोबुलस को फॉर्म करने में हेल्प किया है। जबकि फीमेल प्लांट में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है दे आर अरेंज्ड in such a manner that they are all formed by lateral buds। और फीमेल प्लांट में फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन कौन किया है? lateral buds ने फॉर्म किया है। these are all female sex organ and here the female sex organ they are larger and they are all separately arranged। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो काफी लार्ज है और वो सेपरेटली अरेंज है, ग्रुप में नहीं है। जैसे यहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल जो है वो ग्रुप में था, इससे अपन ने क्या नाम दिए थे? मेल कोन, और यू कॉल इट एज मेल स्ट्रोबुलस। बट इन फीमेल प्लांट The megasporophyll are arranged। फीमेल प्लांट की बात की जाए तो फीमेल प्लांट में मेगास्पोरोफिल्स है, and these megasporophills they are many number and they are all arranged separately and they are all formed by lateral buds। और स्टेम के lateral buds के द्वारा ये मेगास्पोरोफिल का फॉर्मेशन हुआ है। इसलिए फीमेल प्लांट की ग्रोथ जो है वो क्या रहती है? कंटिन्यू रहती है। इन फीमेल प्लांट द ग्रोथ गेट कंटिन्यू, इंडेफिनिट ग्रोथ है फीमेल प्लांट की। जबकि मेल प्लांट की ग्रोथ जो है वो स्टंटेड हो जाती है, क्योंकि मेल कोन का फॉर्मेशन किसके द्वारा हुआ है? अपाइकल बड के द्वारा हुआ है। बिकॉज द मेल प्लांट द मेल कोन इज फॉर्म बाय अपाइकल बड एंड मेगास्पोरोफिल आर फॉर्म बाय लैटरल बड्स। मेगास्पोरोफिल आर फॉर्म बाय लैटरल बड्स। So here you will observe these are megasporophyll and on this megasporophyll direct the megasporangium are attached। और इसी megasporophyll में डायरेक्ट क्या लगी हुई है? क्या अरेंज की हुई है? मेगास्पोरेंजियम जो है दे आर अरेंज। दीज आर ऑल कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम। और यू कॉल्ड ओव्यूल ऑन विच द पोलन ग्रेन विल सेटल। जिसके ऊपर क्या सेटल होता है? पोलन ग्रेन सेटल होता है। दीज आर ऑल कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम। इसको क्या लेबल करोगे आप? मेगास्पोरेंजियम। और यू मे कॉल्ड ओव्यूल ऑफ साइकस which is again largest in plant kingdom। जो फीमेल साइकस में सबसे लार्जेस्ट है, जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल जो है सबसे लार्जेस्ट है। तो डायरेक्टली जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन विल कम फ्रॉम मेल प्लांट एंड डायरेक्टली सेटल ऑन ओव्यूल ऑफ साइकस इन फीमेल प्लांट। दैट्स व्हाई हियर द पॉलिनेशन इज ऑलवेज एनिमोफिलस टाइप। और पॉलिनेशन को कौन सा पॉलिनेशन बोला गया है? डायरेक्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन। द पोलन ग्रेन डायरेक्ट सेटल हो रहा है ओव्यूल के ऊपर, मेगास्पोरेंजियम के ऊपर, इसलिए पॉलिनेशन को बोला जाता है direct pollination। Now when you observe this ovule, after fertilization this ovule get converted into seed, ठीक है, and that seed helps to develop a new plant। और वो seed फिर से हेल्प करेगा न्यू प्लांट डेवलप करने के लिए। तो ये जो फिनोमिना है
जो ओव्यूल के इंटरनल होगी, ओव्यूल का भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, द ओव्यूल इज ऑलवेज 3 लेयर्ड। ओव्यूल जो यहां पर क्या रहता है, मेगास्पोरेंजियम इज ऑलवेज 3 लेयर्ड, और जो 3 लेयर है वो यूनिटेक्निक है। 3 लेयर जो है वो क्या है, यूनिटेक्निक है। और एंडोस्पर्म जो है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बन जाता है, जबकि एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपने पढ़े हो 10th स्टैंडर्ड में कि एंडोस्पर्म जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन टिश्यू है, जबकि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो है बिफोर फर्टिलाइजेशन ही डेवलप हो जाता है। दिस इज अगेन वन ऑफ द बिग चेंज इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। इनसाइड ओव्यूल आर्किगोनिया इज प्रेजेंट। ओव्यूल के अंदर में आर्किगोनिया है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, उस आर्किगोनिया के अंदर में फीमेल गमीट है। पोलन ग्रेन जो है वो मेल गमीट बनाएगा। आर्किगोनिया के अंदर में फीमेल गमीट है, तो अल्टीमेटली मेल गमीट फीमेल गमीट फ्यूज होगा। दैट फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस ओव्यूल नाउ गेट कन्वर्टेड टू सीड। ये जितने भी ओव्यूल हैं ये सब अब काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। These ovules now get converted into seeds, and when you observe these seeds, once they fall on ground, again you get a new plant. और जैसे सीड जो है ग्राउंड सरफेस पे फॉल होंगे, again you get a new plant. तो here a sexual method will help to develop a new plant body. Even a vegetative method is also there. यहाँ पर एक vegetative method भी है. Vegetative method is that method in which plant itself, by vegetative part itself prepare a new plant, and that new plant starts developing at the base. और new plant जो develop होते हैं वो base से develop होते हैं. Here you will observe here at the base a bulbil like structure will develop. स्टेम के ही कॉर्नर पे सॉइल सरफेस से अटैच किया हुआ एक बुलबिल लाइक स्ट्रक्चर प्लांट क्या करता है, डेवलप करता है. Here you will observe a new plant starts developing. This new plant which starts developing from base of stem is just like a bud, and this young bud divides and redivides continuously into a new plant body. So this reproduction is called as a bulbil type of reproduction. यहाँ पर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ है वो बुलबिल से हुआ है. एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है बेस में फॉर्म हुआ है, और वो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर से नया जनरेशन डेवलप हो रहा है. This is the vegetative method of reproduction, and we call this vegetative method of reproduction as bulbil type of reproduction. So here you will observe this is external morphology and how the sex organs are formed. यहाँ पर अपन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी डिस्कस की, जिसमें प्लांट का अपने को शेप समझ में आया, प्लांट का अपीयरेंस समझ में आया, ठीक है, और उस अपीयरेंस में सेक्स ऑर्गन्स कहां फॉर्म हुए वो अपने को समझ में आया. इज इट क्लियर? सेक्स ऑर्गन्स में मेल सेक्स ऑर्गन जो है टॉप पर है, फीमेल सेक्स ऑर्गन टॉप पर है, लेकिन वो लैटरल बर्ड के द्वारा फॉर्म हुआ है, इसलिए फीमेल प्लांट की ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअस होगी. ठीक है, और लैटरल बर्ड जो है क्या फॉर्म किया है, लार्ज नंबर ऑफ मेगास्पोरोफिल फॉर्म किया है. This megasporophil is nothing but a type of female sex organ called gynoecium. ये भी gynoecium का ही पार्ट है. अपन एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट में मेल सेक्स ऑर्गन को एंडोशियम बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को gynoecium बोलते हैं. एंडोशियम यू नो वेरी वेल दैट इट गेट डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 पार्ट. एंडोशियम आपको मालूम है कि एंडोशियम जो है वो 3 पार्ट से बनता है, जिसमें फिलामेंट है, कनेक्टिव है और एंथर है. दिस इज फिलामेंट, दिस वन इज कनेक्टिव एंड दिस वन इज एंथर. दिस इज मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंडोशियम. फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात की जाए तो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो 3 पार्ट से बनता है. When you observe the angiospermic plant, flowering plant, so here you will observe there is a swollen ovary, long elongated style and then the tip stigma. ये swollen ovary हो गया, long elongated style हो गया, और टिप पर रिसेप्टिव पार्ट हो गया जिसको बोला जाता है स्टिग्मा. This is female sex organ called as gynoecium. This is male sex organ called as endoecium, having well developed filament. At the tip anthers are present and this is connective. ठीक है, लेकिन ये जो सेक्स ऑर्गन ये एडवांस सेक्स ऑर्गन है. एडवांस सेक्स ऑर्गन मींस हायर प्लांट्स में आपको अवेलेबल मिलेंगे, और हायर प्लांट स्टार्ट होता है एंजियोस्पर्म से. ठीक है, ये प्रिमिटिव प्लांट है जिम्नोस्पर्म, इसलिए यहां पर मेल सेक्स ऑर्गन में आपको माइक्रोस्पोरोफिल मिला है. उस माइक्रोस्पोरोफिल से पोलन ग्रेन फॉर्म हुआ है. यहां पर भी एंथर की जवाबदारी थी पोलन ग्रेन को रिलीज करना. यहां पर फीमेल सेक्स ऑर्गन में ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा है, एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट में, इसमें ओवरी के अंदर में ओव्यूल प्रेजेंट रहता है. ठीक है, यहां पर ओवरी नहीं है, स्टाइल नहीं है, स्टिग्मा नहीं है, डायरेक्ट ओव्यूल है, डायरेक्ट मेगास्पोरेंजियम है. इसलिए पोलन ग्रेन जो रिलीज हुआ है वो डायरेक्ट मेगास्पोरेंजियम के ऊपर ओव्यूल के ऊपर सेटल हो रहा है. जबकि फ्लावरिंग प्लांट में जो पोलन ग्रेन है वो कहां सेटल होता है, स्टिग्मा की सरफेस पे सेटल होता है. ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा की सरफेस पे पोलन ग्रेन अगर सेटल हुआ तो उस पॉलिनेशन को बोलेंगे इनडायरेक्ट पॉलिनेशन. जबकि यहां पर जो पॉलिनेशन हो रहा है जिम्नोस्पर्म में वो पॉलिनेशन के अनुसार है
डायरेक्ट पॉलिनेशन है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट पॉलिनेशन जो है वो ओव्यूल के ऊपर सेटल हुआ है। तो दिस इंडिकेट्स सम डिटेल्स रिगार्डिंग जिम्नोस्पर्म प्लांट, particularly name of that plant is Cycas. In Cycas, again secondary growth takes place. जिम्नोस्पर्म में ग्रोथ जो है सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है। वस्कुलर प्लांट है ये, इट्स अ वस्कुलर प्लांट हैविंग वेल डेवलप्ड जाइलम एलिमेंट एंड फ्लोएम एलिमेंट। लेकिन जाइलम जो अवेलेबल है उसमें ट्रैकिड्स है, वेसल्स जो अवेलेबल है, ठीक है, सम वेसल्स आर आल्सो अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ फ्लोएम एंड ऑलवेज सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, प्लांट का एक्स्ट्रा डेवलपमेंट होता है, स्टेम का बार्क गर्थ स्टेम की बढ़ती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। These are the few characteristic features which are observed in plant like Cycas.